Good evening, students, and once again welcome in the world of partnership accounting. प्यारे बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में सेकेंड चैप्टर दैट इज चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण पार्ट है गुडविल वैल्यूएशन का, तो दैट वी विल डिस्कस टुडे and I will tell you in detail what is goodwill, what are different types of goodwill, and what are the various methods of valuation of goodwill, and when goodwill is valued, what are the occasions when goodwill valuation is done. These things I will discuss with you all. So first of all, goodwill. What is goodwill? All of you will tell that it is an intangible asset. It cannot be seen, it cannot be touched, yet it is not a fictitious asset. Of course, goodwill is an intangible asset. It cannot be seen, it cannot be touched, yet it is an asset which has value, and that value can be recorded in terms of money. It is not fictitious asset which is not going to yield any money value. So goodwill is an intangible asset, but what it is? Building, you know, in building you live, in building you do business, etc. Machine, you know, by using machine you generate, you produce products, you produce services and generate revenue. But what is this goodwill? Goodwill, जैसा कि नाम कह रहा है, reputation. और reputation कैसे बनता है? Suppose you have a business, और उस बिजनेस का रिपुटेशन कैसे बनेगा? अगर आपका बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाता है वो अच्छी क्वालिटी का है, आप उसकी रेगुलर सप्लाई दे रहे हैं, एंड यू आर प्रोवाइडिंग दिस प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस टू योर कस्टमर, एंड बिकॉज ऑफ दैट कस्टमर्स कम अगेन एंड अगेन, दे रिपीट देयर परचेजिंग, एंड इन एडिशन टू इट more and more new customers come to you. It means your firm has earned goodwill. Your firm is a reputed firm, and definitely if customers will do repeat purchasing and more customers will come, so your sales will go up and your sales revenue will also go up, and then your profits will go up. It means profit earning capacity is the goodwill. If your firm is earning normal profits like other firms, then there is no goodwill. But if it is earning extra profit, more than the normal profit, definitely that firm enjoy the benefit of his name, and this is termed as an asset which is known as goodwill, and therefore goodwill has a monetary value. So what is goodwill that you have understood? Let us take what are the different types of goodwill? Types of goodwill. Number one, purchased goodwill. And number two, self-generated. Or inherent goodwill. Purchase goodwill means what? Suppose you are purchasing a business, running business you are purchasing, and you have set purchase consideration, the purchase price of that business
purchase consideration, that is known as purchase consideration rupees 5 lakhs. And what are you getting? If you are purchasing business, then you are purchasing its assets and liabilities. So land is 1 lakh rupees, machine is 2 lakh rupees, furniture is 1 lakh rupees, and liability is 50,000 rupees. Means you are getting, out of this 5 lakh, you are getting 1 lakh land, 2 lakh machine, means 3 lakhs, furniture 1 lakh, 4 lakh, and liability also you are undertaking of that business 50,000. It means you are getting assets of रुपीज 2 1 3 1 4 लाख रुपए, माइनस लाइबिलिटीज minus 50,000, means you are getting net asset of rupees 3,50,000 only, but you are paying rupees 5 lakh. You are paying rupees 5 lakh, so you are paying 1,50,000 more. 5 lakh minus 3,50,000 means you are paying 1,50,000 more. What is this 1,50,000? You are paying for goodwill. And if you are paying 1,50,000 for goodwill, so it will be considered purchase goodwill and it will be recorded in books of account and it will appear in balance sheet also. This is the case. But if it is self-generated, you are doing consistent good business, you are providing good quality product at reasonable prices, your sales is going up, your profits are going up. So this is self-generated or inherent goodwill, and it is very difficult to value this goodwill. But since you have not paid any money, that's why this goodwill will not be recorded in books of accounts. This goodwill will not be recorded in books of accounts. Not recorded. And this is recorded purchase goodwill is recorded and self-generated goodwill is not recorded in books. Now, one question arises, what is the need for valuation of goodwill? As I have already told in previous class, when I was solving the question of admission, I told you that whenever there is change in profit sharing ratio, whenever there is admission of partner, whenever there is retirement of partner or death of partner, so what happens? There is change in profit sharing ratio. And if there is change in profit sharing ratio, in case of admission of a partner, when the new partner comes, he will start sharing profits, and this thing old partners will not like, because they have done a lot of hard work for earning this current profit, and the new partner will come and he will start sharing the profits. This is not justified. ये तो न्याय संगत नहीं होगा, और इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, इस प्रॉफिट का जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, यानी जो उसका, इस प्रॉफिट को हम किस टर्म में देखें, इस प्रॉफिट को हम गुडविल के रूप में देख रहे हैं, उस गुडविल का हिस्सा तुम्हें लाना होगा. तो इसका मतलब एडमिशन के समय गुडविल का वैल्यूएशन होना मस्ट होता है. इसी तरह रिटायरमेंट के समय भी, डेथ के समय भी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय भी, या आप अपने फर्म को बेचना चाहते हैं उस समय भी गुडविल का वैल्यूएशन मस्ट होता है.
या फिर एक कंडीशन और है, जब आपका फर्म किसी दूसरे फर्म के साथ मर्ज हो रहा है, देन ऑल्सो देयर विल बी नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो दीज आर द इवेंट्स व्हेन गुडविल वैल्यूएशन इज डन. नंबर 1, change in profit sharing ratio. Change in profit sharing ratio. Number 2, admission of partner. Number 3, retirement or death. Number 4, selling out of business. And number 5, amalgamation of business. Amalgamation या आप कह सकते हैं merger of business with other business. Amalgamation of businesses. These are the conditions when there is need for valuation of goodwill. Now let us come to methods of valuation of goodwill. Methods of valuation of goodwill. जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट के आधार पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, और पहला मेथड जो है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड. अच्छा, कोई फर्म, अगर आप अपने फर्म को सेल कर रहे हैं और कोई फर्म जानना चाहती है कि इसमें आप गुडविल का वैल्यू क्या ले रहे हैं, या आप डिसाइड करना चाहते हैं कि गुडविल का हम इतना पैसा लेंगे, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कितना पैसा लेंगे गुडविल का? दिस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो हम कैसे प्रॉफिटेबिलिटी पता करेंगे? किसी एक साल के प्रॉफिट से अगर हम पता करें तो शायद वो उचित नहीं होगा. हो सकता है कि करंट ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन पीछे से कंपनी लॉस में की रही हो, तब तो वो गुडविल वैल्यूएशन गलत हो जाएगा. इसलिए पिछले 4-5 सालों का हम रिकॉर्ड लेते हैं. मान लीजिए 4 साल के प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं हम, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. दिस इज द फॉर्मूला. अब आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 साल के प्रॉफिट को ले लेते हैं. 2016, 2017, 2018 और 2019. हमने 4 साल का प्रॉफिट लिया. सपोज करो यहाँ पे प्रॉफिट था 5 लाख रुपए, यहाँ पे प्रॉफिट था 4 लाख रुपए, यहाँ पे 3 लाख का लॉस हो गया, और यहाँ पे 8 लाख का प्रॉफिट हो गया. लॉस को हम ब्रैकेट में निकला देते हैं. अब हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? 5, 4, 9, 8, 17, और 17 में से ये 3 घटा दिया तो कितना हो गया? 14 लाख. तो 14 लाख का एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 14 lakhs डिवाइड बाई 4 years, 1, 2, 3, 4, यानी 3,50,000. तो इसका मतलब कि एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 3,50,000. और इस पे हम डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या लगाएंगे. सपोज करिए कि यहाँ पे हमने 3 साल इस एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना करेंगे. ये डिसाइड हो गया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी गुडविल की वो हो जाएगी 10,50,000. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड. कहीं कहीं पे एक दूसरा मेथड भी इस्तेमाल होता है जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. यहां पे हम वेट देते हैं प्रॉफिट्स को. करेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट देते हैं और उसके बाद वाले को हम कम करते चले जाते हैं. तो इसी एग्जांपल को हम यहां ले लेते हैं. 16 में प्रॉफिट हमारा है 5 lakhs,
17 में है 4 लाख, 18 में है 3 लाख का लॉस, और 19 में है 8 लाख का प्रॉफिट। इसको हमने वेट दिया क्योंकि जो पैसे की वैल्यू होती है ना, वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है ये पीछे के सालों में कम होती जाएगी, इसलिए इसको सबसे ज्यादा हम वेट देते हैं। 1 2 3 4, इसको हमने वेट दिया 4, इसको दिया 3, इसको दिया 2, और सबसे बाद वाले को हमने दिया 1। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेटेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 5 लाख इंटू 1 5 लाख, 4 लाख इंटू 2 8 लाख, 3 लाख इंटू 3 9 लाख, बट दिस विल बी इन ब्रैकेट, एंड 8 लाख इंटू 4 32 लाख। अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। 32 8 40 पर 45, 45 में से 9 लाख आपने घटा दिया, 40 और 4 और 36 लाख। यहाँ पे आपका जो टोटल वेटेड प्रॉफिट जो आ रहा है वो 36 लाख है। टोटल वेटेड प्रॉफिट 36 लाख, और नंबर ऑफ वेट कितना हुआ, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल वेट कितना हुआ 10 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3,60,000। तो दिस इज द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा, यहां पे फिर वही करेंगे। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 3,60,000, मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 इयर्स परचेज का लिया, तो ये कितना हो जाएगा 7,20,000 गुडविल की वैल्यू हो जाएगी। अब एक तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी तक हमने एवरेज प्रॉफिट से निकाला था, और जो प्रॉफिट था उसका एवरेज निकाल के गुडविल की वैल्यूएशन निकाली थी। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है कि इफ द फर्म इज अर्निंग मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, देन ओनली द फर्म इज हैविंग गुडविल, अदरवाइज इट हैज नो गुडविल। What is the formula for calculating goodwill from super profit method? So goodwill is equal to super profit into number of years purchase. अब ये बात है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3,50,000। 3,50,000। अब इस इंडस्ट्री में जिसमें ये फर्म काम करती है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 10% है, और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड, इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20 लाख, तो 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख। जाहिर सी बात है कि कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा पैसा कमा रही है, और जो वो ज्यादा कमा रही है 1,50,000, वो क्या है? दैट इज सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का वैल्यूएशन आप इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू, अगर कहा गया है कि 2 इयर्स परचेज, तो 1,50,000 into 2 years purchase is equal to 3 lakhs. This will be the value of goodwill. So this is how goodwill is calculated from super profit method. अब एक और मेथड हमें आपसे डिस्कस करना है, and that is capitalization of profit.
Capitalization of profit, this is the last method of valuation of goodwill. Let me discuss it here. I will erase this. Fourth method, capitalization of एवरेज प्रॉफिट मेथड, या आप सीधे से इसको बोल दीजिए कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, इस मेथड में जो फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से। अगर वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन दी कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब कंपनी के पास गुडविल है, इट हैज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? गुडविल इज इक्वल टू, जो हमने बोला उसी को लिखना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सो अगर हम इस केस को लें, जैसा कि हमने यहां लिया था कि 20 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 3,50,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 3,50,000। हमें चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। मार्केट का रेट कितना है? 10%। तो कितने का 10%? 3,50,000 है। कितने का 10%? मान ले कि हमारी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो x है। सपोज कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू x, तो x इंटू, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% इज इक्वल टू कितना अर्न कर रहा है? एवरेज प्रॉफिट 3,50,000। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 3,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, यानी कितना? 35 lakhs। So this is the capitalized value of actual average profit, 35 लाख। जबकि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 20 lakhs ओनली, 20 lakhs। इसका मतलब गुडविल की वैल्यू क्या होगी? 35 लाख माइनस 20 लाख यानी 15 लाख। So this is how we calculate value of goodwill from different methods. First method I told you, average profit method, where it is very simple method. Profits of 4 years, 5 years, whatever is given in your question, that you will add. One thing I would like to add here, कि ये जो प्रॉफिट्स दिए गए हैं या लॉस दिए गए हैं, अगर इसमें कोई एबनॉर्मल वैल्यू शामिल है, मान लीजिए 5 लाख का प्रॉफिट है और इसमें कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट शामिल है जो हमेशा नहीं होगा, किसी एक बार हो गया, वो बार बार नहीं होगा, तो उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, उस प्रॉफिट को हमें माइनस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करेंगे, तभी हमें उस फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का सही पता चलेगा और उसी आधार पर गुडविल वैल्यूएशन होगा। तो ये एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं प्रॉफिट में, अगर सवाल में दिया है तो इस आधार पे हम
प्रॉफिट्स जोड़ करके नंबर ऑफ ईयर्स से भाग दे करके एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जैसा क्वेश्चन में दिया है मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट के आधार पे गुडविल की वैल्यूएशन आ जाती है। वेटेड एवरेज में हम वेट देते हैं, वेट का भी जोड़ करते हैं और वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट का भी जोड़ करते हैं, फिर उसे डिवाइड करके हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फिर गुडविल का फॉर्मूला वही फॉर्मूला जो यहाँ पे लगा है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने पहले आपको बताया कि इफ द फर्म इज अर्निंग मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट देन इट इज अर्निंग सुपर प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालेंगे और फिर कंपेयर करके हम पता लगाएंगे सुपर प्रॉफिट का और फिर फार्मूला वही वाला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उसके बाद हम कैपिटलाइज्ड मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालेंगे और यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, और आप गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। और आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है ये हमने यहाँ पे आपको समझाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज गुडविल, what are the different types of goodwill, and what is the need for valuation of goodwill, and what are the different types of different methods of valuation of goodwill. So I hope कि आपको goodwill के बारे में डिटेल में जानकारी मिल गई होगी, and please write in the comment section कि how was this session, how I explained you, whether you have been able to understand it or not. Please write in the comment section, and please, if you like it, if you understand it, please give your likes, give your comments, and subscribe to my channel and share with your friends. Thank you very much.